Buddha gave us Panchsheel, and we all had to try to follow those Panchsheel in our life for a better lifestyle. Yes. Okay. Now I will just connected all the Panchsheel with Udmita. The first shield consists of prohibition of killing and both humans and all animals. Okay, scholars have interpreted Buddhism text about the perception and as an opposition to and prohibition of capital punishment, suicide and abortion and etc. And I can connect this with the right of life. And if we see the first percept in the construct of a business or the construct of Udmita, so it means that if we started any business and there are a lot of chances that someone is doing any illegal business and any type of business which is harmful for others' life and for other human beings and for animals also, as you can see in the technology today's, so that must be prohibited. And in doing a business we should not harm others, and it can be that we should found the middle path which is given by Lord Buddha. And the second one is the second shield is prohibited theft related activities and such frauds and forgery. As I can connect it that with the right to property, as we can connect this percept with business, that this happens so many times that people do fraud doing for doing better business and for upgrade in their business, and they stall uh, others ideas and others thoughts, and they just started doing their business, and the others business will be flopped fine fully. And as I can give an example that one colleague is planning for any presentation for their upgradation and anything else, and then tell anyone that colleague want any other colleague that want to promotion or increment, they stole their planning and presentation. And the second colleague with is cheated with the first colleague, right? And it really happens in our society most of the times, as we can see in our society. And the third shield is to adultery in all its forms. It is related with right of individual and right to society. In business context, we can say that no business should harm another, as we can connect the business of weapon, as we can say. And this become harmful for our society also, because Udmita is not just only for earning money, this is also for helping others in different ways. And the fourth one, shield is involves falsehood or spoken or committed by action, as well as malicious speech, harsh speech, or gossip that can be connected with right not to be lied to and right of human dignity. And in a society, we can watch every second or third person is doing gossip and they used harsh speech for others. Because nowadays people are very irritated. Their nature is become very irritated. Just like in business and Udmita, we should not gossip for other Udmis. We can say other businessmen, so that more and more customers comes to us and others business is fully ruined, and more employees wants to be job in our business, because everyone had their own business ideas and goals and way to achieve. But we should not use that wrong way to attract others towards our business. And the last one is the fifth shield prohibits intoxication thoughts, alcohol, drugs, or other means. Early Buddhists
texts nearly always condemn alcohol, and so do Chinese Buddhist post canonical texts. Smoking is something sometimes also includes here, and this can be connected with the right of individual and security and a safe society. In business context, we can say this percept to we can connect this percept to the first shield, and that we should not do that type of business which is harmful for others life, and it can be harmful for our life also, our business also, because if as Deepak sir said that if we do that type of work which is harmful for our mind, which is disturbed our mind, and this is not good for our life, this is very harmful and for our business also. So Panchsheel is one of very important thing that we have to follow in business and in our life for a better lifestyle. And Udmita is not only for earning money. This is also for helping others, also helping for our society and upgrade our society in the way of education and success for others and for ourselves also. Thank you so much everyone for listening me my views, and please correct me wherever I was wrong. Thank you so much. Jai Bhim Navotay. धन्यवाद भारती। आपने पंचशील और उद्यमिता को रिलेट करते हुए हमें समझाने का प्रयत्न किया कि उद्यमिता केवल पैसा कमाने का मार्ग नहीं है, इससे सशक्त होने का एक प्रबल मार्ग है जिससे स्वयं का सशक्तिकरण किया जा सकता है और दूसरे को भी सुखद और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। हमारे साथ इस पे विचार रखने के लिए हमने रविंद्र जी को भी सेलेक्ट किया है। रविंद्र जी, आप अपनी बातों को 5 मिनट के अंदर रखने की कृपा करेंगे। उसके पश्चात हम लोग सर के पास चलेंगे। रविंद्र सर, आप अपनी बात को रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू भारती बहन और ऑल टीम फॉर डेन एम्पावरमेंट। भारतीय सिस्टर ने बहुत अच्छा बताया कि आइडियाज किसी एक व्यक्ति का होता है, लेकिन उसका बेनिफिट जो है ना हम सभी उठाते हैं। जैसे कि सर का एग्जांपल है डॉक्टर परवीन सर का। दीप आईएएस एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, सर का खुद का आइडिया जनरेट हो सकता है क्या, उनके समूह का जनरेट हो सकता है, लेकिन उसका बेनिफिट आज हम पूरे भारत के जितने भी सिविल सर्विस के या मेडिकल के छात्र हैं या उद्यमिता के स्टूडेंट हैं, वो सारा बेनिफिट ऑनलाइन के माध्यम से उठा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय थॉट है। और बुद्ध ने ये बहुत पहले ही कह दिया था, आज से 2500 वर्ष पहले। और मैं इसको थोड़ा बुद्ध से रिलेट करके जो उनके पंचशील का सिद्धांत है या उनके भिक्षुओं के माध्यम से, जो उनके ज्ञान के माध्यम से हम लोगों के बीच में आया, उस पे एक थोड़ा सा विचार रखूंगा। जब बुद्ध के उपदेशों को हमें जापान में छापना था, उल्लेखित करना था, तो उस समय जापान में भी क्या हुआ कि एक अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ने के कारण जो बौद्ध भिक्षु उस लेख को ट्रांसलेट करके छपवाना चाहते थे, उनको चाहिए थे उस समय 10,000 रुपए। लेकिन अकाल पड़ने के कारण वो 10,000 रुपए भिक्षु ने इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन जब अकाल पड़ जाता है तो क्योंकि बुद्ध की भावना से जुड़े हुए थे, उन्होंने बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो 10,000 रुपए को डोनेट कर देते थे उस अकाल के लिए, और वो लेख छपने से रह जाता है बुक का। देन कुछ दिनों के बाद सेकंड परिस्थिति भी ऐसे ही डेवलप हो जाती है और वो फिर 10,000 रुपए इकट्ठे करते हैं और 10,000 रुपए फिर वो उसी में डोनेट कर देते हैं, लोगों के कल्याण के लिए लगा देते हैं, और वो लेख फिर उनका छपने से रह जाता है। जो बुद्ध के विचार फैलाने थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं। लेकिन समाज कल्याण को देखते हुए, लोगों की भूखमरी को देखते हुए, बुद्ध भिक्षु अपना जो अच्छा आचरण दिखाते हैं कि नहीं, अभी जो लोगों की नीड है वो किसकी है, उनको खाना चाहिए, भरण पोषण के लिए पैसा चाहिए, और वो सारा अपना डोनेट उसमें कर देते हैं।
तो इससे बहुत सारे जो उनके भिक्षु के शिष्य थे बहुत नाराज हो जाते हैं कि आपने जो पैसा धन इकट्ठा किया था कि हमें बुद्ध के विचारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जापान में छपवाना था, वो तो आपने किया नहीं और आपने लोगों के लिए पैसा दे दिया। तो वो कुछ नहीं बोले भिक्षु जो गुरु थे उनके, और आराम से शांति से बैठे रहे बुद्ध की मुद्रा की तरह, और वो कुछ समय का वेट करते रहे। आखिर में आके कुछ समय के बाद थर्ड टाइम जब उन्होंने अमाउंट कलेक्ट किया 10,000 रुपीज और अमाउंट कलेक्ट हो गया, तो उन्होंने क्या कहा कि वो लेख आखिर में छप जाता है और 2 लेख पिछले नहीं छपते। उस लेख के छपने से क्या हुआ कि उस लेख में छपने से तृतीय संस्करण जो 2 रह गए थे तृतीय में आया, और उसमें लिखा गया कि इस ग्रंथ से पहले जितने भी संस्करण थे वो बहुत ही अच्छे लिखे हुए थे। लिखा नहीं गया था, लेकिन समाज की परिस्थिति को देखते हुए, बुद्ध के विचारों को देखते हुए उन्होंने ऐसी जिज्ञासा लगाई थी कि अगर हम के बुद्ध के मार्ग पे चलना है तो इस तरह से हमें क्या करना है कि अपने समय के अनुसार हमें ऐसी परिस्थितियों को अपनाना पड़ेगा। और समाज कल्याण के लिए उन्होंने बुद्ध के विचारों को तो रोका, लेकिन समाज की जो नीड थी उसको फुलफिल किया। ऐसे ही कुछ विचार अगर मैं आज वर्तमान परिस्थिति में देखूं तो हमारा जो यूनाइटेड नेशन है, जो हमारे 17 सस्टेनेबल गोल हैं, अगर उसमें इस परिस्थिति को मैं कोरिलेट करता हूं तो हमारा जो पहले ही जो लक्ष्य है वो गरीबी को पूर्णतः को समाप्ति करने की बात करता है कि दुनिया के हर देश में सभी लोगों के लिए अधिक से अधिक गरीबी को हमें समाप्त करना है। और ये बुद्ध के उस उद्देश्य से ही निकल के आया है। जो जापान की घटना कब हुई थी, ये 2500 पहले वर्ष के बाद की, 2-4 वर्ष के बाद की लगा लीजिए, बुद्ध के परिनिर्वाण होने के बाद। लेकिन उनके विचार आज भी देखो हमारा यूनाइटेड नेशन कैसे अपना रहा है कि उसको रिटन एविडेंस एजेंडा 2030 के रूप में उनके विचार आज फॉलो हो रहे हैं। जो लक्ष्य उस समय भरण पोषण के लिए बौद्ध भिक्षु ने लगा दिया था, तो वो ही उस तरह की परिस्थिति आज हमारे यूनाइटेड नेशन में भी बनी हुई है कि यूनाइटेड नेशन को कहना पड़ रहा है कि हमारे वर्ल्ड में जो है गरीबी है उसको दूर करने के लिए निवारण करना पड़ेगा। तो बुद्ध के जो पंचशील के सिद्धांत हैं बड़े बहुत ही व्यापक हैं। शब्दों का रूप आकार बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन उसका जो स्वरूप है ना वो कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड पे इंपैक्ट डालता है। ऐसे बुद्ध के विचारों से ये देखने को हमें यूनाइटेड नेशन के माध्यम से मिला। और यही विचार अगर मैं कोरिलेट करके देखूं उद्यमिता से, तो हमारी इसी की जो हमारी यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य हम जो पढ़ेंगे 9, तो उसमें बड़े अच्छे से लिखा उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास करना। हमें जो जितनी भी उद्यमिता है, जितना भी बिजनेस प्लान बनाना है, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से और न्यू क्रिएटिविटी के माध्यम से वो हमें अपनाना पड़ेगा। और बाकायदे डॉक्टर परवीन सर के माध्यम से जो एवरी संडे क्लासेज हुई है, 15 मार्च को जो उद्यमिता का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, रियल में वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि वो हमारी यूनाइटेड नेशन के एजेंडा जो 17 रखे हुए हैं 2030 में, उनको भी कहीं ना कहीं फुलफिल करता है। और ये हो कैसा रहा, ऐसे साबित नहीं है कि सर ने जो शुरुआत कर दी है तो वो ऐसे थोड़ी ना कर दी। अरे इसका जो बेस और आधार आया है निकल के, वो बुद्ध के पंचशील के विचारों से ही आया है। और उस पंचशील के विचारों को सर ने अपनाया है, और यही पंचशील के आधार हमारे भारतीय संविधान में भी लिखने को डीपीएसपी में आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा, सर ने कहा अगर हम यूनाइटेड नेशन का जो लक्ष्य 4 पढ़ेंगे, जो टारगेट 4 है हमारा, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन। और सर अगर सर की मैं एजुकेशन जो हमारे सर के माध्यम से उद्यमिता की जो एजुकेशन हमें बताई जा रही है, वो समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट सबकी बात करता है। वो पोल्यूशन निवारण की भी बात करता है, प्रदूषण निवारण की भी बात करता है, हमें डेवलपमेंट की बात करता है। तो ये हमारा यूनाइटेड नेशन 4 में भी इंडिकेट, जो हमारा टारगेट 4 है उसमें लिखा हुआ है कि 2030 तक जितनी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, वो टेक्निकली हो या नहीं, उद्यमिता की क्रिएटिविटी के माध्यम से हर व्यक्ति के लिए हमें देना ही देना है। तो सर का ये काम जो इतना सराहनीय है, अगर मैं वैसे देखूं जो सर हमें ये एजुकेशन संडे के रूप में जो क्लासेस हो रही हैं, तो बेसिकली बिजनेस एम्पावरमेंट जो प्लान है ना, ये हायर एजुकेशन का प्लान है। और सर हमें
इसमें टारगेट रखा कि कोई भी व्यक्ति इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकता है अपनी जिज्ञासा के अनुसार, अपनी एजुकेशन के अनुसार। तो सर ने ये बाउंडेशन भी नहीं रखी। अगर हम ग्रेजुएशन MBA में देखेंगे तो बिजनेस प्लान वहां बड़े अच्छे से डेफिनेट किया हुआ है, और सर उससे पहले ही हमें तैयार कर रहे हैं कि आइए बिजनेस प्लान के लिए तैयार होइए, उसको एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा को ग्रहण कीजिए। और जैसे भारती बहन ने कहा कि जो बिजनेस है हमारा, जो उद्यमिता है, किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, वो पूरे समूह को हमारे डेवलप करता है। उस सभी लोगों का एक बिजनेस के हिसाब डेवलप होने से सभी लोगों का विकास होता है। तो ये हमारे एक गर्व की बात है कि सर हमारे लिए ऐसा काम कर रहे हैं, और यही हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे प्रोग्राम बने हुए हैं। और जिम्मेदारी, हमें जिम्मेदारी का बोध भी करा रहा है, एहसास भी करा रहे हैं कि नहीं, एक भारतीय होने के नाते, एक संविधान की जो आपने ओथ ली है, वो भारतीय सिटीजन होने के नाते ये आपका कर्तव्य है कि जो आर्टिकल 51A में इंडिकेट किए गए हैं, चाहे वो अभिभावक के रूप में एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए या किसी भी भारतीय के लिए हो, उनको भी इंडिकेट करते हैं कि ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें उद्यमिता की ओर, बुद्ध के पंचशील की ओर, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारतीय संविधान की ओर कैसे हमें शांति प्रिय होकर अपने विचारों को लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। उस तरह से ये सर ने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, अगर हम अंतरराष्ट्रीय शांति और न्याय की बात करते हैं तो हमारा जो लक्ष्य टारगेट 16 है, ये टारगेट 16 हमें टिकाऊ बिजनेस की बात कर रहा है, शांतिपूर्ण न्याय, समाज से भी समावेशी विकास के लिए बढ़ावा की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो बुद्ध के जो पंचशील हैं, देखो हमारे यूनाइटेड नेशन भी उसको फॉलो कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट उस अछूते रह जाते हैं इन चीजों से। जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हम इसको क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाते, तो मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट का ये दायित्व बनता है कि हमें इससे ज्वाइन होना चाहिए। अगर हम इससे ज्वाइन होंगे, सर हैं प्रेजेंट हैं, और सर कहीं मान लीजिए किसी भी मेंस के बाद आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे, तो हो सकता है सर से आपकी मिला भेंट हो जाए, वहां आप बैठो, और अगर हम ये ऐसे कोरिलेट करेंगे तो हमें उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है कि पार्ट ऑफ हमारी एजुकेशन का हिस्सा भी है ये, जिस के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। दीपक सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पंचशील को यूनाइटेड नेशन और हमारे जीवन के हर हिस्से से जोड़ के बताया। आपको धन्यवाद। समय का अभाव है, हम सीधे सर के पास चलते हैं। आपका आभार व्यक्त करते हैं रविंद्र जी, आपने अपना विचार रखा। सर से निवेदन है कि सर अपने विचार को रखें। धन्यवाद दीपक। सभी साथियों को एक बार फिर से जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग जो जिस विषय पर बात कर रहे हैं, उद्यमिता और पंचशील, और मुझे लगता है आप सभी ने, दीपक ने, भारती ने, रविंदर ने बहुत अच्छे से सभी पहलुओं को रखा है कि उद्यमिता में पंचशील का क्या योगदान होगा। क्योंकि हमारे लिए उद्यमिता की ओर आगे बढ़ना, उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझ लें कि उद्यमिता से हमें, पंचशील से क्या उद्यमिता में हमें कोई लाभ हो भी सकता है। आज के समय में माफ कीजिएगा, आज के समय में जो एक पॉपुलर विचार है, क्योंकि जो पंचशील के अधिकांश विचार हैं वो आज के समय के से प्रासंगिक नहीं लगते हैं, आज के समय से विपरीत लग सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि नहीं, ये बातें बिल्कुल गलत हैं, परंतु जब तक हम इनको समझेंगे नहीं, इनके महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक शायद हम उद्यमिता की ओर नहीं बढ़ सकेंगे और धम्म की ओर नहीं बढ़ सकेंगे। और जो हमारा वंचितपन है, जिसको हम हमेशा बोलते हैं कि हम वंचित हैं, हम लाचार हैं, हम दलित हैं, हम सताए हुए हैं, तो जब तक हम इसका विज्ञान नहीं समझेंगे कि आखिर हम वंचित क्यों हैं, आखिर हम इतने 2000 साल से लाचार क्यों हैं, इसका विज्ञान क्या है, इसका कारण क्या है, तो इसके कारण के शोध में हमें ये पंचशील देखने को उसके साथ मिलेगा। जैसा अभी आप सभी साथियों ने इस बात को समझाने की कोशिश की है,
और मैं अपने विचार को एक जगह से दोबारा जोड़ने के लिए आपके साथ मैं एक लंबे समय से इस पर बात करता रहा हूं कि जो धम्म है, जो शिक्षा है और उद्यम है, इन तीनों का आपस में एक संबंध है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये हम सब की नासमझी है कि अधिकांशतः हम इन तीनों को अलग करके देखते हैं, तीन हिस्से करके देखते हैं। इन तीन जुड़ी हुई चीज़ों को एक साथ जोड़कर नहीं देख पाते हैं। जैसे हम शिक्षा जब हासिल करते हैं तो शिक्षा केवल हम शाब्दिक ज्ञान को या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रट लेना ही शिक्षा मान लेते हैं कि केवल कुछ किताब में बातें लिखी हुई हैं, उनका रट्टा मार लो, पेपर के दिन उसी रटे हुए चीज़ों को उगलाओ और वही शिक्षा है। तो जो हमारी ये शिक्षा की समझ है, जो हमारी गलत समझ है शिक्षा की, वो एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा और उद्यम, आज हम बात उद्यमिता की ही कर रहे हैं कुछ समय से, तो उद्यमिता को अगर हम जोड़ें, और उद्यमिता क्या है? उद्यमिता बहुत बार हम बिजनेस शब्द से जोड़ के केवल देखते हैं, व्यापार से जोड़ के देखते हैं। व्यापार एक बहुत छोटा हिस्सा है उद्यमिता का। उद्यमिता व्यापार से कहीं ज्यादा बड़ी है। उद्यमिता, जैसे मैं हमेशा इसको अपनी माँ से ही जोड़कर देखता रहा हूँ, क्योंकि हमारी माँ, मेरा छोटा भाई वो चंचल हुआ करता था, तेज हुआ करता था, तो उसको काफी बोला जाता था कि वो उद्यमी है, उद्यमी है। हम सबको भी ये बात कही जाती थी जब छोटे थे कि ये बहुत उद्यमी है। तो जो उद्यमी बच्चा होता है वो बहुत ऊर्जावान बच्चा होता है, ऊर्जावान व्यक्ति होता है, और वो अपनी ऊर्जा से कुछ कार्य करता है। उसे उद्यमी हम सामान्य भाषा में, लोक भाषा में, आमजन की भाषा में उद्यमी बोल देते हैं। और जो उद्यमी है, वो उद्यमी वो व्यक्ति है जो अपनी एजुकेशन, अपने कार्यों को एक साकार रूप में, एक शेप में डिजाइन करने की कोशिश कर रहा है। व्यापार उसका एक तरीका हो सकता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो आपके उद्यम को प्रदर्शित करता है। आपके आलस को छोड़ के, आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, उस बात को छोड़कर सब कुछ करना, जो भी आप ऊर्जा से कुछ करने का जो आपका एक्शन है, वो एक्शन उद्यम की ओर जाता है। पर ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने की होती है कि उद्यम बिना शिक्षा के कभी सफल नहीं हो सकता। तो शिक्षा जो सही मायनों में शिक्षा है, जो ज्ञान की शिक्षा है, जिसमें हमें ज्ञान को समझना चाहिए, चाहे हम कैसा भी ज्ञान हो, चाहे हमारा विज्ञान का ज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान का ज्ञान हो, तो इस ज्ञान को, जीवन का ज्ञान हो, तो उस ज्ञान को हम उस उद्यम में, उस एक्शन में लेके आए। जैसे तथागत भी अपने अष्टांगिक मार्ग में हमें सम्यक कर्म का मार्ग बताते हैं। तो कर्म का मार्ग ही उद्यम का मार्ग है। पर ये जरूर याद रखना चाहिए कि अगर कर्म सही नहीं है, अगर कर्म ज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कर्म व्यर्थ होगा, आप बेकार करते रहेंगे। कुछ कोशिश कर रहे हैं, पर अगर आपकी कोशिश में ज्ञान नहीं जुड़ा हुआ है, शिक्षा नहीं जुड़ी हुई है, तो आपका वो कर्म बेकार है, आपका वो उद्यम बेकार है। तो उद्यम उसी ऊर्जा को परिवर्तित करने का, एक शेप देने का तरीका है उद्यम। और इस उद्यम से जुड़ा हुआ है धम्म, कि धम्म आपके उद्यम, क्योंकि धम्म से कर्म बनता है, धम्म से शिक्षा आती है। तो धम्म में शिक्षा में धम्म का बहुत बड़ा आवश्यक अंग है। धम्म ही हमें बताता है कि किस प्रकार पंचशील का रास्ता आपके उद्यम को सफल बनाएगा। यदि आप हिंसा नहीं करेंगे, आप हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाएंगे, तो समाज में एक बेहतर व्यवस्था काबिज होगी, एक बेहतर सिस्टम लागू रहेगा,
और वो बेहतर सिस्टम के आधार पर ही हमारे उद्यम चालू हो सकेंगे। अन्यथा हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए, हिंसा करने के लिए अगर आतुर बैठा हुआ है, तो ऐसे समय में किसी भी प्रकार का उद्यम और किसी भी प्रकार की शिक्षा संभव नहीं हो पाएगी। तो हिंसा का त्याग करना, किसी दूसरे को चोट पहुंचाने की नीयत का त्याग करना ही पंचशील का मार्ग है। किसी दूसरे की चीज को ना लेना, जैसा अभी बताया था दीपक ने शुरू में, किसी दूसरे की चीज हमें नहीं लेना, जो चीज हमारी नहीं है उसे हमें नहीं लेना है। तो वो भी हमारे इस धम्म का मार्ग है, पंचशील का मार्ग है। हमें आवश्यकता पड़ने पर किसी से मांग सकते हैं, बोरो कर सकते हैं कि कृपया करके मुझे अपनी ये चीज दे दीजिए, आपके पास ये साधन है, आपके पास पैसा है। तो जैसा मैं इसको अगर बहुत सरल उदाहरण में कहूँ, मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूँ कि हमारे वंचित समाज में आपसी लेन देन बहुत कम होता है। जो साधनों का लेन देन, पैसों का लेन देन बहुत कम होता है, जिसका बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों में पंचशील का हम पालन नहीं करते हैं। हम अगर किसी से पैसा लेते हैं तो वापस नहीं करते हैं। बहुत ऐसे हमारे साथी हैं कि दूसरे का सामान लिया, दूसरे से पैसा लिया अपनी आवश्यकता पड़ने पर, और जब वो काम पूरा हो गया, जब आवश्यकता पूरी हो गई, तब हम उसे वापस देने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो ऐसा करने से समाज में एक ऐसी व्यवस्था बन गई है कि कोई किसी को होने पर भी, अगर मेरे पास कोई चीज उपलब्ध है, उसके बावजूद भी मैं वो चीज नहीं दूंगा, केवल इस भय से कि भाई ये कोई मुझे लौटाएगा तो है नहीं। यहाँ पर लोग वापस देते नहीं है। मुझे लगता है आप सभी लोग आमतौर पर इस बात को सुनते रहते होंगे कि भाई हमें कोई लोन देता नहीं है, कोई हमें पैसा देता नहीं है। उसका कारण है कि हमारे समाज में पंचशील का अभाव है। हम पंचशील का पालन नहीं करते हैं, तो समाज में एक व्यवस्था नहीं है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, और इस अविश्वास के कारण हमारा जो समाज है वो लगातार वंचित बना रहता है, बनता जाता है। हिंसा है, हम आपस में एक दूसरे पर हिंसा करते हैं, जिसके कारण भी हम एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था नहीं बना पाते और एक वंचितता की ओर बढ़ते रहते हैं। हमारा जो नशाखोरी है वो भी एक बड़ी दिक्कत है, जिसके कारण हमें सही और गलत का, और नशाखोरी केवल कुछ मादक पदार्थों तक सीमित नहीं है, वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। लोभ लालच मुझे लगता है सबसे बड़ा नशा है। थोड़ा सा भी लालच हुआ उसका नशा है। हमारे पास राजनीति का नशा देखने को मिलता है। बहुत लोग तरह तरह के नशों में घूम रहे हैं, उनको सही गलत का कोई बोध नहीं है। पैसे का लालच, लोभ कि पैसा कमाना है, उसके कारण उसका नशा जो है, उसके कारण भी बहुत से लोग सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे पंचशील ने हमें बताए हैं। अगर हम इनको अपने जीवन में अपनाएं, सामाजिक रूप से कलेक्टिवली अपनाएं, तो मेरे ख्याल से हम सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि पंचशील के बिना हमारे उद्यम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं इस बात के साथ ही अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमारे को जो कारण है कि हम वंचित क्यों हैं, हम वंचित हैं, ये एक फैक्ट है ना, इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। हम सब लोग इस बात से सहमत हैं। और सवाल ये उठता है कि हम वंचित क्यों हैं, हम सशक्त क्यों नहीं हैं, हम लाचार क्यों हैं। तो इन सब के कारणों को जानने की हमें कोशिश करनी होगी। धम्म का मार्ग, पंचशील का मार्ग हमें यही बताता है, यही शिक्षा देता है, यही ज्ञान देता है कि आखिर वो क्या चीजें हैं, वो क्या गलतियां हैं, वो क्या कमियां हैं जिनके कारण हम वंचित हैं, जिनके कारण हम सशक्त नहीं हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं, और यदि आपका किसी का कोई प्रश्न हो इस संबंध में, पंचशील के संबंध में, कि क्या उद्यम से, व्यापार से, सीधा सीधा अगर मैं कहूँ व्यापार से कोई संबंध है, तो आप पूछ सकते हैं इस प्रश्न को। धन्यवाद सर। किसी साथी का प्रश्न हो तो अपने प्रश्न को रखें। हेलो हेलो। हाँ सर, आप अपनी बात को रखें, भीम सर।
जी जी, जय भीम नवोदय। मेरा एक प्रश्न है सर से। सर, एक जो व्यापारी होता है, एक दुकानदार होता है, वो अपने दुकान में एक कपड़ा रखता है, एक पैंट शर्ट रखता है मान लो, और वो पैंट शर्ट सपोज दैट 100 रुपए की वो खरीद के लाता है, और वो जब एक खरीदार आता है जो खरीदने आता है, तो उसको वो उसी चीज को 500 रुपये बताता है, कर जी 500 रुपए का है, उसमें वो झूठ बोलता है, और वो बिल्कुल कसम तक खा जाता है कि अपने बच्चों तक की कसम खा जाता है कि जी मैंने तो खरीदा ये 450 रुपए का है, मैं इसको 500 रुपए में बेचूंगा। मगर वो जब बार्गेनिंग करते करते वो 400 रुपए में भी उसको दे देता है। तो ये झूठ क्या नैतिकता की कसौटी पे सही है या गलत? मेरा ये प्रश्न है। बहुत अच्छा मौलिक सा प्रश्न है आपका, बहुत ही बुनियादी सा प्रश्न है। और मैं एक काम करता हूँ कि मैं उद्यम के, क्योंकि यहाँ बात उद्यम की चल रही है, और मैं भी उसी उदाहरण को, जो उदाहरण आपने लिया है, उसी को आगे लेकर चलना चाहूँगा, ठीक है। और मैं आपको ये उदाहरण दिखाना चाहूँगा कि हम लोगों को, क्योंकि इसकी परिभाषा करना कि क्या सही है और क्या गलत है, ये भी जो है इतना आसान नहीं होता, और वंचित व्यक्ति सही और गलत की सही अवधारणा को भी नहीं जान पाता। तो हमारे को सही की अवधारणा कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक काम है कि हम एक व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने एक उदाहरण दिया कि मैंने 100 रुपए का कमीज खरीदा। मैं इसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि हम लोग इस उदाहरण को अपने जीवन में समझ सकें, क्योंकि ये बहुत जरूरी वो है, सवाल है, खासतौर में उद्यम करते हुए। आपके उद्यम में आपको ये प्रश्न बार बार आएगा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। मैंने 100 रुपए का कमीज खरीदा, अब मैं उसे कितने का बेचूं? शायद मेरे ख्याल से आपका सवाल यही है, अगर इसको मैं सही तरह से समझ पाया हूं, कि मैं धम्म का पालन करते हुए मैं इस 100 रुपए के कमीज को कितने का बेचूं। अगर मैं भीम जी आपके सवाल को ठीक से समझ पाया हूं तो यही सवाल है आपका। मेरे सामने कई संभावनाएं हैं, ठीक है, कि मैं इसे 125 रुपए का बेच दूं, मैं इसको 150 रुपए का बेचूं, मैं इसको 200 का बेचूं, मैं इसको 500 का बेचूं। मेरे पास ये सारी संभावनाएं उपलब्ध हैं, ठीक। अब मुझे इसका मूल्यांकन, इसका मूल्य समझना है कि मेरी कमीज का मूल्य क्या है, और उस कमीज को जब मैं बेच रहा हूं तो उसका वास्तविक मूल्य क्या है। हम लोग जो वंचित समाज से जो लोग आते हैं वो बहुत बार सत्य की ऐसी परिभाषा को समझ बैठते हैं जो खुद भी ठीक नहीं होती है, और उसका एक कारण होता है ज्ञान का अभाव, ठीक। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि कमीज का, जब हमने एक कमीज का व्यापार किया कि हम कमीज की एक दुकान खोल के बैठेंगे और दुकान खोलकर हम जो है कमीजें बेचेंगे, हम लोगों को एक सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि उन्हें उनके घर के पास ही, नजदीक ही, जो उनको पहनने की आवश्यकता है उसके लिए एक शर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हम एक अपना व्यापार कर रहे हैं जिसके जरिए से हम अपना भी, अपने घर का भी पेट भरना चाहते हैं, और उस सामने वाले कंज्यूमर को भी एक सुविधा देना चाहते हैं। अब पहली चीज है कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारी कीमत कितनी है कमीज की? 100 रुपया जी, 100 रुपये। ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब इसके अलावा हमारी और क्या कीमत है जो हम कमीज के इस व्यापार को करने के समय में कमीज के व्यापार में जुड़ा हुआ है। तब हम ये तय करेंगे कि हमें 125 बेचना चाहिए, 150 बेचना चाहिए, 200 बेचना चाहिए, 500 बेचना चाहिए। तो इसमें कोई और कीमत है हमारी, या खाली यही एक कीमत है? जी, कार्टेज है, लेबर है, उस दुकान का किराया है। आपने जो है वहां गए और वहां से सामान लेकर आए, तो निश्चित रूप से आप किसी को सुविधा दे रहे हैं, पर उसका खर्च आप वहन कर रहे हैं। आप थोक विक्रेता के पास गए और वहां से सामान लेकर आए, और लाने ले जाने में मान लीजिए आपने प्रति कमीज 20 रुपया खर्चा किया, तो 20 रुपया आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक कमीज के ऊपर खर्च हो गई, क्योंकि आप जाएंगे लेकर आएंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने लेबर,
ठीक है। आप जो काम कर रहे हैं या आपके साथ में कोई आपने काम करने के लिए मजदूर रखे हुए हैं, क्योंकि हर कोई अपनी जीविका कमाना चाहेगा। मैं ये सवाल समयक आजीविका के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि समयक आजीविका क्या होनी चाहिए। अब हम श्रम कर रहे हैं, हम अपने श्रम को, हम खाली कमीज नहीं बेच रहे हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम 100 रुपए की कमीज बेच रहे हैं तो केवल कमीज नहीं बेच रहे हैं, कमीज के साथ क्या बेच रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, साथ में क्या बेच रहे हैं, लेबर कॉस्ट। हमारा श्रम भी तो जुड़ा हुआ है उसमें। हमने अपना एक दिन वेस्ट किया, वेस्ट नहीं मतलब हमारा, क्योंकि ये काम है, हम गए वहां लेकर उठा के सामान लेकर आए, तो हमने अपना श्रम, और हो सकता है हमारे साथ जुड़े हुए और लोग भी हों, उनका श्रम वो भी इस कमीज का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो हो सकता है एक आदमी की दिन की दिहाड़ी कितनी होगी, 2 आदमी मान लीजिए इस व्यापार में लगे हैं, तो एक आदमी को कितना दिहाड़ी मिल जाना चाहिए, 800 1000 रुपये मेरे ख्याल से एक व्यक्ति को मिलने चाहिए। मैं ज्यादा तो शायद नहीं बोल रहा हूँ, 800 1000 रुपये आज मजदूर भी, जो मिस्त्री राजमिस्त्री होता है, ज्यादा पैसा नहीं देते हैं, फिर भी 800 1000 रुपया उसको मिलना चाहिए। तो 1000 रुपया, 1-2 आदमी गए, 2000 रुपये का हमने इसमें लेबर श्रम हमने लगाया। अब मान लीजिए 2000 रुपये का श्रम लगाकर हमने पूरे दिन में 20 कमीज बेच दी, तो प्रति कमीज हमारा कितना श्रम लग गया, 100 रुपए का हमारा श्रम आ गया। श्रम लगाने के बाद हमने दुकान, क्योंकि हम सड़क पर तो नहीं बेच सकते हैं, हमें कहीं दुकान रखनी होगी, कोई शॉप करेंगे, कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट बनाएंगे, तो हमने एक शॉप रखी। ठीक है, हमने दुकान बनाई, दुकान का भाड़ा देंगे, या दुकान हमारी है तो उसमें पूंजी निवेश करेंगे, तो दुकान का भाड़ा हमने कुछ खर्चा किया, मान लीजिए हमने 10,000 रुपया एक दुकान का दिया हुआ है, और 5,000 रुपया हम उसके ऊपर बिजली पानी ये सब खर्चा, 15,000 रुपया खर्चा कर लेते हैं। महीने भर में हम कितना कमीज बेच लेंगे, कुछ भी आप नंबर दीजिए, 500 कमीज बेच लेंगे हम, तो प्रति कमीज हम 30 रुपया हम दुकान बेच रहे हैं। ठीक है जी, तो प्रति कमीज हम उसे 30 रुपए की दुकान भी दे रहे हैं। अच्छा, अब हम ये समझिए ये टोटल कितना हो गया। अच्छा, टैक्स वगैरह, चलिए टैक्स में अभी छोड़ देता हूँ, ऐसे तो सरकार का टैक्स भी लगाना चाहिए। ये टोटल कितना हो गया, वैसे इसके अलावा भी कई खर्च हो जाएंगे, तो ये टोटल कितना हुआ, 250 रुपया। अच्छा, इसमें एक खर्च अभी हम भूल गए हैं, क्योंकि ये 250 रुपये आपने पहले खर्च कर दिए हैं। दुकान जो व्यक्ति है उससे आपको ये पैसा जो है बाद में मिलने वाला है, तुरंत नहीं मिलेगा। आपने जब दुकान पर गए सामान लेने थोक में, तो आपने दुकानदार को 100 रुपये दे दिए, आपने जो भाड़े वाला था उसको दे दिए, जो मजदूरी थी वो दे दी, जो दुकान का किराया था दे दिया। अब ये पैसा देने के आपको वापस कितने बाद मिलेगा, महीने बाद मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा। तो मान लीजिए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपने निवेश किया और 250 रुपये आपका 3 महीने बाद रिटर्न आया, लौट के आया, तो 250 रुपये पे 3 महीने का ब्याज कितना लग जाएगा, मोटा मोटा मैं रख लेता हूँ, चलिए 10 रुपया ब्याज हो गया। तो कुल हमारी जो कमीज की कीमत, हमारी जो लागत हो गई, कॉस्ट प्राइस, जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है, माई कॉस्ट, वो 250 रुपये है। अब आप मुझे बताइए कि मुझे ये कमीज कितने की बेच देनी चाहिए, कुछ मैं इस पर प्रॉफिट कमा सकता हूं, मुझे कमाना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं करता हूं, लेट्स से मैं 10% प्रॉफिट की कामना रखता हूं। 10% प्रॉफिट ठीक है, 10% प्रॉफिट ज्यादा बुरी चीज तो नहीं है। मुझे करीब 286-290 रुपए की बेचनी चाहिए। तो आपने जो उदाहरण दिया, ठीक है, वो थोड़ा सा उदाहरण वैसा हो गया, पर हमें यहाँ ना, मैं एक बहुत बुनियादी बात वंचित समाज के उद्यम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वंचित समाज का व्यक्ति व्यापार करता है, उद्यम करता है, तो वो केवल कीमत लेता है जो उसका रॉ मटेरियल होता है। जैसे यहाँ पर कमीज है
है ना, हमने कमीज का उदाहरण दिया। परंतु हमें उद्यम करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कमीज बेचते हैं, कमीज के साथ और बहुत सारी चीजें भी बेच रहे होते हैं, तो उनकी कीमत भी हमें उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। और अगर हम इस 100 रुपए की कमीज को 300 रुपए की में बेचें तो वो समयक व्यापार होगा, वो कोई गलत व्यापार नहीं होगा। हम लोग बहुत बार, जो बनिया तबका है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनाफाखोरी करते हैं, है ना, मुनाफाखोरी करने वाले बहुत सारे लोग हमारे सामने हो सकते हैं, जो मुनाफाखोरी करेंगे कि भाई 100 रुपए की चीज 1000 में बेच रहे हैं, वो गलत है। परंतु हमें वास्तविक कीमत के कंसेप्ट को, रियल कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट है, हमारी जो हिडन कॉस्ट होती हैं, हम व्यापार करते समय हिडन कॉस्ट को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और जब हम हिडन कॉस्ट को अप्रिशिएट नहीं कर पाते तो हम चीजें उनकी दाम से कम दाम पर बेच देते हैं और बाद में हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा उद्यम चल नहीं पाया। तो यहाँ ये याद रखिएगा कि यहाँ ये कुछ गलत नहीं है, हम किसी से कुछ नाजायज नहीं ले रहे हैं, हम केवल वो ले रहे हैं जो हमारा गया है, हमारी जो लागत लगी है। हमने प्रॉफिट तो केवल 10% का कमाया है, प्रॉफिट तो हमने केवल 26 रुपए कमाए, क्योंकि हो सकता है मेरी कमीज की कीमत 100 रुपए आई हो, पर वो कमीज की कीमत उस कंज्यूमर को देने तक 260 रुपए हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं इसे पंचशील के साथ और समयक आजीविका के साथ जोड़ के बताना चाहूंगा कि समयक आजीविका में सही गणित करना भी बेहद जरूरी है। कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि हम किसी चीज को बहुत महंगा बेच रहे हैं, किसी चीज को जरूरत से ज्यादा हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसका कारण ये नहीं है कि वो हम महंगा बेच रहे हैं, उसका कारण क्या है? अंदर कॉस्ट, हमारी कॉस्ट की समझ ना होना, हमारा ज्ञान की कमी। यहीं पर मैं बात कहूंगा, वो जो शिक्षा, उद्यम और धम्म का त्रिकोण है। धम्म आपको ये कभी नहीं कहता कि धम्म आप अपनी जो आपकी कॉस्ट है आप उसे भी रिकवर ना करो, धम्म कतई ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि धम्म हमेशा समयक आजीविका की बात करता है, समयकता की, कि ना आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, ना आप खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो समयकता नहीं है, वो भी असमयक है, क्योंकि वो लंबे समय तक टिकने वाली आजीविका नहीं है। आप ऐसी दुकान जिसमें आप 100 रुपए की कमीज, क्योंकि ये मैं अपने व्यक्तिगत उदाहरण से भी बता सकता हूँ, किसी समय हमारे घर में ऐसा एक छोटा सा व्यापार किया गया था, तो उसमें हमारी भी समझ ऐसी ही थी। पर आज इन चीजों को समझता हूँ तो ये बात को एहसास होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, इसीलिए हमारे व्यापार नहीं चल पाते। हम 100 रुपए की कीमत की चीज लाते हैं और तुरंत लगा देते हैं कि भाई 100 रुपए 20% प्रॉफिट, ये 120 रुपए की, चलो 150 रुपए की। 150 रुपए में बहुत महंगा है, बहुत हम सस्ता दे रहे हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छी हो रहे हैं। पर हम जो हिडन कॉस्ट है, जो छुपी हुई कॉस्ट है, जो हमारे श्रम की कॉस्ट है, जो उसमें हमने मेहनत की, हमने जो दिन भर उसमें लगाया, वो कॉस्ट को हम नहीं पहचान पाते हैं, जिसके कारण से हमारे उद्यम हम जो है नहीं कर पाते। भीम जी, मैं अपने इस चीज को थोड़ा समझा पाया? अगर आपका मतलब ये थोड़ा सा जटिल है, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपनी जरूर बताएं। भीम सर जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें इस पर। शायद भीम सर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो रखें। भीम सर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? सुन पा रहे हैं क्या? किसी साथी का और कोई प्रश्न है? हेलो जी सर, आप बोले। भीम सर जी, आप अपनी बात जी रखें। जी, सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि व्यापार को सम्यक आजीविका किस तरह से कमाई जा सकती है। वो सर ने बहुत ही डिटेल में समझाया। सर का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार सर। जी, धन्यवाद। हमारा समय समाप्ति से अधिक जा रहा है। किसी का
कोई मैं प्रश्न हो तो दीपक एक लास्ट लाइन यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा कि हमें जो है पंचशील है ना, पंचशील या धम्म को लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए, हमें व्यवहारिक तौर पर, क्योंकि हमें प्रासंगिक तौर पर भी पंचशील को अपनाना चाहिए। मैं ये जो उदाहरण देने की जो मैंने कोशिश की, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, ये बात बेशक ये व्यापार की एक बहुत साधारण सी बात लगे, परंतु जो कॉस्ट कैलकुलेशन है, तो जीवन में हमें जो पंचशील है या जो धम्म का रास्ता है उसे एक बहुत व्यवहारिक तरीके से लेकर आना है। हमें ये समझना है कि हाँ ठीक है, मैं किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा, ठीक, मेरा जो पॉइंट यहाँ पर रखने का था, जो ये कॉस्ट का ब्रेकअप देने का था, वहाँ पर ये बात समझाने की थी कि पंचशील हमेशा ये कहता है कि हमें किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, किसी का शोषण नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम 100 रुपए की कमीज लाएं और बस देखें, या जैसे बहुत बार होता है लोग आवश्यकता पड़ने पर कि ये दवाई है 100 रुपए की, इसको जरूरत है और मेरे को जो है 1000 रुपए भी मैं वसूल सकता हूँ, तो मैं से आज 1000 रुपए वसूल लेता हूँ, 10,000 रुपए, तो वो एक्सप्लॉइटेशन है, हमें वो नहीं करना है। परंतु ये भी ध्यान रखना है कि हमें खुद भी एक्सप्लॉइट नहीं हो जाना है। पंचशील में ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे हिंसा का एक पक्ष है। हम जब बोलते हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे, तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर यदि कोई हमला करेगा तो क्या आप जो है बैठे रहेंगे, आराम करते रहेंगे? ऐसा नहीं है। तथागत ने ये कभी नहीं कहा कि नहीं हम हिंसा को बिल्कुल लिटरल सेंस में देखेंगे, कोई हमारे ऊपर मारने के लिए चला आ रहा है, हमें अपने सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है, और उस सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को कोई चोट पहुंचती है तो वो गलत नहीं होगी। तो ऐसे ही हर चीज को, हर पंचशील को, हर जो मार्ग दिखाया गया है उसको हमें उस तरीके से, जो समयकता है, समयकता यही है कि हमें बैलेंस से देखना है, हमें बराबर करके देखना है, हमें खुद को खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी दूसरे को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। इस पूरे तथ्य को बड़ी गंभीरता से समझना है। जी सर, अगर संक्षिप्त में कहें तो मध्यम मार्ग को अपनाना है जी। ठीक है, समय हमारा समाप्त हो चुका है, समय समाप्ति से अधिक ही हो चुका है। अगर किसी का साथी का कोई भी प्रश्न हो तो संक्षिप्त में रखें। शायद किसी साथी का प्रश्न नहीं है। सर अगर आप कहें तो आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाए। जी, सभी साथियों को आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि जो तथागत बुद्ध का ये जो मार्ग है, पंचशील का मार्ग है, इसको आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन में खुद लाभान्वित होंगे, खुद सशक्त बनेंगे और समाज को सशक्तिकरण की ओर ले जाएंगे। इसी के साथ हम आज का जो कार्यक्रम है उसे खत्म करते हैं, और आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, धन्यवाद सर। जय भीम सर।